Hello and welcome to the next video of chapter trigonometry and hopefully the last video of this chapter. I hope to complete this practice set 6.2 in this video and hence the entire chapter. Okay, so in the last video we had seen sum number 1 and sum number 2 of practice set 6.2, and whereas 6th sum I had asked you to solve by yourself. I hope you all have solved it by yourself and you all were able to get the correct answer. It was very similar to our question number 2. Now we are looking at question number 3. I'll quickly read it. Two buildings are facing each other on a road of width 12 meter. Okay, दो buildings है और दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और बीच में जो रोड है उसका width है 12 meters. Okay, from the top of first building which is 10 meter high, the angle of elevation to the top of second building is 60 degrees. Okay, so again, now unless you start drawing the diagram, you won't be able to understand this sentence. So I've already drawn this diagram. So assume these two are the buildings. Okay, दोनों के height मैंने अलग अलग रखे हैं because दोनों के height अलग अलग है. वो second statement में clear होता है. But मैंने already question पढ़ लिया, so I know कि दोनों के height अलग अलग है. Okay, so this is my first building, this is my second building, and बीच में जो width है road का that is 12 meters. Okay, so from the top of the first building, यानी यहाँ से from the top of the first building which is 10 meters high, इसका height भी दे दी है. The angle of elevation of top of the second building, यानी इस यहाँ से यहाँ देख रहे हैं. ओके, तो एंगल क्या बनेगा एलिवेशन का 60 डिग्रीज. ओके, सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग? तो सेकंड बिल्डिंग का हाइट पूछा. ओके, सो फर्स्ट स्टेप फ्रॉम आवर स्टेप्स टू बिल्ड स्किल्स, जस्ट ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी. सो ट्रायंगल तो अभी नहीं दिख रहा, तो क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ डायग्राम अबाउट दैट. ओके, सो दो बिल्डिंग्स बना लिए और इसका हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर्स, नहीं 10 मीटर्स. हमेशा सेंटीमीटर क्यों बोल रहा हूं? 10 मीटर्स. तो दोनों के बीच में जो रोड है उसका विड्थ है 12 मीटर्स. एंड यहां से द पर्सन और द ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, सो दिस वे, राइट. तो फिर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन यू ऑलवेज मेजर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, राइट. हॉरिजॉन्टल अभी यहाँ पे है नहीं, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है पैरेलल विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल. ओके, सो दिस एंगल इज 60 डिग्रीज. ओके, सो ये हमें मिल गया. बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें क्वेश्चन में सॉरी स्टेप्स में क्या बोला है? ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे? इट इज हियर. ये जो डॉटेड लाइन से ट्रायंगल बन गया, दैट इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल. सो लेट मी कॉल दिस एज ए B and C. This is right angle triangle ABC. ये दो पॉइंट्स को भी नाम देते हैं. I am giving it as P and Q. So our first step is done. We have drawn a right angle triangle. CP will be our first building. AQ will be our second building. Okay, and PQ will be the width of the road between the two buildings. Okay. Next, label the triangle using the question. So हम लोग ने label भी कर दिया, right? Question के जो कुछ भी values थे वहाँ पे put कर दिए. Next, write the assumptions made. So let us start writing the assumptions. Okay, let CP and AQ be the two buildings. फिर buildings के बाद width of the road, and PQ be the width of the road between the buildings. Okay, so we have done with the assumption. फिर बाद में values put कर लेते हैं. We know that CP is equal to 10 meters. Then we know PQ is equal to 12 meters. What else? Angle of elevation. So angle of elevation क्या है angle? It is angle ACB. Okay, angle ACB is equal to 60 degrees. वो भी हम लोग ने लिख दिया. एंड ये CB जो लाइन है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था क्या? नहीं दिया था, राइट. सो CB के बारे में भी हम लोग को लिखना पड़ेगा. CB हम लोग ने ड्रॉ किया. सो वील से ड्रॉ CB
पैरेलल टू PQ. Okay, CB parallel to PQ मैंने बोल दिया. Why? Because we wanted to take the angle of elevation from horizontal. Okay, so I think our third step is also done. We have written the assumptions. Now use geometry and trigonometry. अभी geometry और trigonometry use करना पड़ेगा. Okay, so to use trigonometry इस triangle में we need at least एक side का length. जब तक एक साइड का लेंथ नहीं पता होगा, ये जो तीन साइड है, तीन में से कोई भी एक साइड का लेंथ पता नहीं होगा, तब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज नहीं कर पाएंगे. क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में समझो मैंने tan 60 डिग्रीज ले लिया, सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट आएगा. या तो ऑपोजिट पता होना चाहिए या तो एडजेसेंट पता होना चाहिए, दोनों में से कुछ तो एक पता होगा, तभी हम लोग कुछ ढूंढ पाएंगे. तो इस ट्राइंगल का कोई ना कोई एक साइड पता होना चाहिए. सो मुझे ये दिख रहा है कि 90 ये quadrilateral CPQB ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है. एक्चुअली इट्स लुकिंग लाइक अ स्क्वायर बट इट्स अ रेक्टेंगल. ओके, हम लोग को पता नहीं कि सारे साइड्स इक्वल, एक्चुअली दिख रहा है सारे साइड्स इक्वल नहीं. ये 10 है, ये 12 है, तो ये दोनों अनइक्वल साइड्स है, यानी स्क्वायर तो नहीं हो सकता, तो ये रेक्टेंगल है. ओके, सो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो एंड अगेन पूछा क्या हम लोग को, AQ पूछा है, राइट. वी हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग. तो AQ पूछा है. AQ फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू नो AB एंड BQ. BQ तो काफी इजीली आ जाएगा, जो कुछ भी CP है विच इज 10, ये भी BQ भी 10 ही होगा. व्हाई? बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल. नेक्स्ट AB कैसे फाइंड आउट करोगे? AB फाइंड आउट करने के लिए यू नीड CB. CB भी कैसे आएगा? PQ 12 है तो CB भी 12 होगा. व्हाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. ओके, बट ये रेक्टेंगल है, पहले प्रूफ करना पड़ेगा. ओके, दैट्स व्हाई वी नीड ज्योमेट्री फर्स्ट एंड देन वी गो टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, सो लेट्स यूज द ज्योमेट्री फर्स्ट. हमें पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल CBPQ इज अ rectangle. Okay, so what's the definition of rectangle? Definition of rectangle is all angles of, when all angles of a quadrilateral are 90 degrees, then it is a rectangle. Okay, so I'll take the quadrilateral first. In quadrilateral CPQB, इसमें क्या हो रहा है? इसमें सबसे पहली बात तो एंगल P और एंगल Q. एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. ये 90 डिग्रीज क्यों होंगे? बिकॉज बिल्डिंग्स हमेशा परपेंडिकुलर टू ग्राउंड होते हैं, राइट. सो आई विल राइट दैट बिल्डिंग आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. ओके, kindly write everything in full form. I don't have lot of space on my board, इसलिए मैं short form में लिख रहा हूँ. So buildings are perpendicular. This is the sign of perpendicular to the ground. ये दाएं क्यों लिखा है मैंने? To the ground. Okay. So दो एंगल्स तो परपेंडिकुलर बता दिए मैंने. नेक्स्ट एंगल, मुझे इस एंगल को 90 डिग्रीज बताना है और इस एंगल को 90 डिग्रीज बताना है. ओके, सो व्हाट विल आई राइट द रीजन? अनदर आई वुड राइट एंगल, I can write PQ is perpendicular to CP and PQ is perpendicular to BQ और QB. Okay, मैंने क्या लिखा है? PQ is perpendicular to CP and PQ is perpendicular to BQ. And और एक चीज हो रही है, so I'll put a comma here. एंड हम लोग ने क्या अज्यूम किया? CB is parallel to PQ, isn't it? So PQ और CP परपेंडिकुलर है, PQ और QB परपेंडिकुलर है और CB एंड PQ इज पैरेलल. इसका मतलब है कि ये जो दो एंगल्स होंगे ये भी 90 डिग्रीज होंगे. ओके, देयरफॉर मेजर एंगल, so angle BCP is equal to angle CBQ is equal to 90 degree. Okay, why? इसका रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज दो लाइंस के बीच में जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर. ओके, दो पैरेलल लाइंस, इन दोनों के बीच में अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं और ये तभी पॉसिबल जब ये दोनों पैरेलल होंगे. तो ये पैरेलल हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, राइट. CB इज पैरेलल टू PQ, CB इज पैरेलल टू PQ, ये हम लोग ने लिख दिया.
तो जब भी दो पैरेलल लाइंस होंगे और बीच में तुम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करो, अगर ये एक परपेंडिकुलर है तो दूसरा भी परपेंडिकुलर ही होगा. दैट सो मेनी रीजंस यू कैन आर्ग्यू फॉर दैट. इसके लिए तुम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम भी, करस्पॉन्डिंग नहीं, इंटीरियर एंगल थ्योरम भी लगा सकते हो. ओके, सो इट्स अप टू यू तुम लोगों को कैसे रीजन लिखना है. ओके, so I'm going to write distance between parallel lines is perpendicular. Perpendicular distance between parallel lines. Okay, so again this is sign for perpendicular. ये दो लाइन ऐसे बनाना मतलब it is sign of parallel. Okay, parallel lines, but you all write in full form in your notebooks. Okay, so सब एंगल्स 90 डिग्रीज बता दिए, यहाँ पे दोनों एंगल्स और यहाँ पे बाकी के दो एंगल्स 90 डिग्रीज बताइए. देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल CPQB इज अ रेक्टेंगल. ओके, इसका रीजन क्या लिखेंगे? बाय डेफिनेशन, राइट? रेक्टेंगल का डेफिनेशन ही वो है, क्या है? दैट ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल शुड बी 90 डिग्रीज. सो बाय डेफिनेशन quadrilateral CPQB is a rectangle. Okay, अभी rectangle हो गया तो opposite sides equal हो जाएंगे. So let me start writing that CB is equal to PQ is equal to 12 meters. फिर CP is equal to BQ is equal to 10 meters. Okay, और इसका रीजन क्या लिखेंगे? Opposite sides of a rectangle. Opposite sides of a rectangle. Okay, so far so clear. अब तक हम लोग ने क्या किया? हम लोग को इस ट्राइंगल का कोई भी एक साइड पता होना चाहिए था. Okay, only when we know at least one side of this triangle can we solve. We can use trigonometric ratios and solve this question. Okay, so we could अगर समझो तुम लोग को ये साइड चाहिए CB, तो उसके लिए तुम लोग को ये बताना होगा कि ये जो पूरा क्वाड्रिलैटरल है दिस इज अ रेक्टेंगल. ओनली रेक्टेंगल प्रूव करने के बाद तुम लोग बोल सकते हो अच्छा ये जो 12 मीटर्स है ये भी 12 मीटर्स होगा, ये जो 10 मीटर्स है ये भी 10 मीटर्स होगा. ओके, सो वंस यू नो दिस नाउ यू कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फंडा ओवर हियर. देन यू विल फाइंड AB मिल गया, BQ भी पता है, AB plus BQ will be your height of the second building and that's what has been asked. Okay, so geometry part is over now and now we'll start focusing on our trigonometry wala part. Okay, so I think I'll have to erase this, so quickly copy this part. This is the geometry part. After doing the geometry part we are going to start with our trigonometry part. ये सब करने के बाद हमें पता चला कि ये 10 है and ये 12 है. Okay, so I'm going to erase this part. Okay, so trigonometry part में what do? We take the right angle triangle, right? हम लोग consider करेंगे उस right angle triangle को. So in triangle ABC, अभी तुम लोग को AB ढूंढना है, राइट? AB ढूंढना है एंड यू नो CB, सो आई विल राइट AB क्योंकि ये हमें ढूंढना है. हमें कौन सा वैल्यू पता है? CB. और चेक कौन सा रेशियो है. हमारा एंगल क्या है? 60 डिग्रीज. ओके, 60 डिग्रीज हमारा एंगल है, तो 60 और AB के बीच में क्या रिलेशन है? 60 और AB. AB इज ऑपोजिट ऑफ 60, सो ऑपोजिट साइड अपॉन 60 का. और CB का क्या रिलेशन है? CB इज एडजेसेंट टू 60, सो एडजेसेंट. सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है? tan होता है. तो यहाँ पे मैं tan 60 लिखूंगा. ओके, सो tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन CB. क्या किया मैंने? पहले जो फाइंड आउट किया उसको न्यूमरेटर में लिख दिया और जो हमें पता है एक वैल्यू उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया. अगर तुम लोग ने इंटरचेंज कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, देन आल्सो यू कैन सॉल्व दिस. ओके, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस. ओके, सो tan 60 डिग्री, व्हाट इज tan 60 डिग्री? इट इज √3, राइट? सो दिस इज √3 इज इक्वल टू AB हमें ढूंढना है, CB इज 12, so AB will be equal to actually let me write this on the left hand side, okay, so that I get a little more space. Tan 60 is equal to AB upon CB. Writing the same thing बाजू में. Tan 60 is equal to AB upon CB.
So root 3 is equal to AB upon 12. Therefore AB is equal to, AB will be equal to 12 into root 3. 12 into root 3. So 12 into root 3 and 12 into 1.73. So this will be equal to 20.76. You can check this, okay? And this will be in meters. Why? क्योंकि तुम लोग ने CV का वैल्यू 12 मीटर्स पुट किया था, सो मीटर्स में पुट किया तो आंसर भी तुम लोग का मीटर्स में आएगा. तो दिस इज 20.76 मीटर्स. तो AB हम लोग को मिल गया, पर क्वेश्चन में AB नहीं पूछा था, क्वेश्चन में हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग पूछा था. सो लेट अस क्विकली फाइंड दैट आल्सो. हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग is equal to AB plus BQ, right? AB plus BQ will be the height of second building. So AB हम लोग ने अभी ढूंढा है 20.76 plus BQ. BQ is 10. All of them are meters. So this will be 30.76 meters. Okay. So now we have got the final answer. But the last step is remaining, writing the final answer in statement form. Okay. So we'll write it in statement form. What is the height of the second building? The height of the second building is 30.76 meters, and box it up in pencil. Okay, so that's your answer to third question. It was nothing different. The only thing was इसमें जो ज्योमेट्री वाला पार्ट था उसमें तुम लोग को इसको पहले रेक्टेंगल प्रूव करना था. रेक्टेंगल प्रूव करके ऑपोजिट साइड्स इक्वल बता के तुम लोग को उस ट्राइंगल का एक साइड मिलेगा. फिर बाद में rest of the sum was very easy and very similar to all the sums we have done so far. Okay, so that's your answer to question number 3. Okay, now let's read the fourth question. Okay, so the fourth question says two poles of height 18 meters and 7 meters are erected on the ground. Okay, so let me draw that first and put the values here. छोटा वाला है 7 meters का और बड़ा वाला जो है वो 18 meters का. Okay, so यहाँ से लेके एकदम नीचे तक it is 18 meters. 18 meters. Okay. They're erected on the ground. The length of the wire fastened at their tops. तो दोनों के टॉप पे एक वायर लगाई है और उस वायर का लेंथ है 22 meters. Okay, so 22 meters. यहाँ पे 18 meters. Okay, find the angle made by the wire with the horizontal. तो horizontal तो यहाँ पे है. So यहाँ पे horizontal तुम लोग एंगल मेजर नहीं कर पाओगे. तो horizontal के पैरेलल एक लाइन बना देते हैं ताकि हम लोग उस एंगल को मेजर कर पाएंगे. ओके, सो दिस इज माय एंगल, सॉरी दिस इज माय लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल. सो दे आर आस्किंग ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल है. ओके, सो थोड़ा अलग है. हमेशा हम लोग को एंगल दे दिया होता है एंड देन यू हैव टू फाइंड वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, राइट. बट यहाँ पे साइड दिया है, बट तुम लोग को क्या फाइंड आउट करना है. यू आर सपोज्ड टू फाइंड what is this angle. Okay, so again I'm not going to solve this entire sum for you all. So the first step हम लोग ने already draw कर लिया. Okay, हम लोग ने right angle draw कर लिया, बस नाम नहीं दिया. So let me put the names. यहाँ पे A, B, this will be 90 and C, और इसको मैं PQ बोल रहा हूँ. Okay, so draw कर दिया हम लोग ने right angle triangle. Label the triangle using the question, वो भी हम लोग ने कर दिया. जो कुछ भी question में दिया था हम लोग ने label कर दिया. Then write the assumptions made. Assumptions made, we have done lot of practice. So I'm going to ask you all to write the assumptions. Okay. So this box you all are supposed to fill. Assumptions. Student practice. कि क्या लिखोगे तुम लोग assumptions में. तुम लोग बोलोगे let CP be the smaller pole, let AB be the AQ be the bigger pole. फिर बाद में तुम लोग वैल्यूज पुट करोगे. CP is equal to 7, AQ is equal to 18 meters and AC which is the wire is 22 meters. Okay, ये सब तुम लोग assumptions के अंदर लिखोगे. So step 3 is also done. Next use geometry. Geometry में क्या यूज करोगे. You will have to first prove कि वो जो अच्छा think about this now. Whenever you write a trigonometric ratio, say for example tan 30, so तुम लोग को opposite side upon adjacent side. So जब भी तुम लोग को ये थीटा का वैल्यू पता होता है, so तुम लोग को ये पूरा का पूरा वैल्यू पता है और इसमें से जो कोई भी एक वैल्यू पता होगा और फिर दूसरा वैल्यू हम लोग ढूंढ लेते हैं, राइट. अभी यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे tan थीटा दिया है. ओके, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है.
तो इसका वैल्यू हमें वी डोंट नो, सो ये दोनों के वैल्यूज हमें पता होने चाहिए, तभी हम लोग इसका वैल्यू ढूंढ पाएंगे। ओके, तो दो साइड्स चाहिए अभी हम लोग को, या तो हमें एक साइड और एक एंगल पता होना चाहिए ट्रायंगल का, या तो हमें दोनों साइड्स पता होने चाहिए, फिर हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो वी नीड टू नो टू साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। एक साइड तो पता है हाइपोटेनस व्हिच इज गिवन एज 22, दूसरा साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो पूरा का पूरा 18 है, वी नो। सो 18 में से ये जो बी क्यू पार्ट है वो तो 7 होगा, राइट? और वो 7 तभी होगा जब ये रेक्टेंगल होगा। सो अगेन यू हैव टू प्रूव कि दैट्स अ रेक्टेंगल। ओके, ज्योमेट्री पार्ट अगेन आई एम गिविंग यू ऑल as practice. Geometry, prove quadrilateral PCBQ is rectangle. Okay, it's very similar to how we proved it a rectangle in the previous sum. Okay, वैसे यूज करके तुम लोग को quadrilateral PCBQ को rectangle prove करना। Okay, once that is proved, then you all can write CP is equal to BQ is equal to 7 meters and yeah, that's it। इतना ही लिख सकते हो। फिर बाद में तुम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? AB फाइंड आउट करना है, राइट? सो AB क्या है? व्हाट इज AB? AB इज पूरा का पूरा माइनस छोटा, पूरा का पूरा क्या है? AQ। सो AQ माइनस वो जो छोटा टुकड़ा BQ। ओके, सो AB इज ये बड़ा टुकड़ा माइनस छोटा टुकड़ा, तो जो बच जाएगा दैट इज योर AB। सो AQ क्या है? AQ इज 18 मीटर्स दैट इज गिवन। BQ इज 7 मीटर्स जो हम लोग ने ऊपर फाइंड आउट किया यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे रीजन आएगा। ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो 18 माइनस 7 कितना आएगा? 18 माइनस 7 विल बी 11। ओके, सो ये आ गया 11 मीटर्स। सो तुम लोग को अभी ये पता है कि ये 11 मीटर है। ओके, AB। सो नाउ यूज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करोगे? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC कौन से दो वैल्यूज पता है हम लोग को? हम लोग को पता है 11 विच इज AB। Okay, let me write this little ahead. AB और कौन सा पता है? CA पता है। AB and CA भी नो। ओके, और एंगल क्या है? थीटा। सो AB क्या है? थीटा के सामने है, राइट? सो दिस इज ऑपोजिट साइड। ओके, एंड देन CA इज द हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन होता है, राइट? सो साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC और CA। ओके, सो ये मैंने रफ कैलकुलेशन किया सो दैट तुम्हें पता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है। ओके, जो कोई भी दो वैल्यूज पता है उसको डिवाइड कर दो, देन चेक वो थीटा के सामने आ रहा है, हाइपोटेन्यूज है या एडजेसेंट है। ओके, सो AB अपॉन AC क्या है? इट इज 11 अपॉन 22। ओके, सो कट हो जाएगा, 11 अपॉन 22 विल बिकम 1 अपॉन 2। 11 1 11 2। सो आई एम गेटिंग साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो साइन के कौन से एंगल पे हाफ वैल्यू मिलता है? साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, राइट? सो राइट, साइन 30 इज ऑल्सो हाफ, राइट? देयरफॉर व्हाट विल आई गेट? देयरफॉर आई विल गेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। समझा है तुम लोग को? इसमें जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, या तो हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए, या तो एक साइड का वैल्यू पता होना चाहिए, या तो दोनों साइड का वैल्यू पता होना चाहिए। अब तक हमें इसका वैल्यू पता था थीटा का, इसलिए साइन थीटा टैन थीटा का वैल्यू पता चल जाता था, और एक साइड पता होता था तो हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करके सेकेंड साइड ढूंढ लेते थे। यहाँ पे थोड़ा सा अलग था। वो क्या अलग था कि दोनों साइड्स दे दिया, अब तुम्हें थीटा ढूंढने पूछा, तो ये स्टेप्स यूज करके यू विल फाइंड द थीटा। ओके, सो थीटा मिल गया। आर वी डन विद द क्वेश्चन? द आंसर इज नो। फाइनल आंसर लिखना है। What will be your final answer? Find the angle made by the wire with the horizontal. The angle made by the wire with the horizontal is 30 degrees. So again, the final answer I am asking you all to write by yourself. Okay. So assumptions तुम लोग को लिखने हैं, फिर ज्योमेट्री यूज करके तुम लोग को quadrilateral PCBQ एक rectangle prove करना है। We have done that in the previous class, previous sum. उसी को देख के तुम लोग को उसी तरह उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, एंड देन दीज आर द स्टेप्स, एंड राइट फाइनली फाइनल आंसर तुम लोग को लिखना है। ओके, सो दैट्स योर सम नंबर 4।